Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5th class. Welcome to the online class of English. 5th class, as you all know that we have complete our English A syllabus. हम अपना English A का जो syllabus है वो complete कर चुके हैं and I am very hopeful that all of you have to learn this by heart. Okay, so 5th class, today we are going to do one of the essay that has left letter to father asking for money. ये हमारा लेटर रह गया था और वो हम अभी लिखने जा रहे हैं. उसके साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, हम वो भी करेंगे. ठीक है, लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क. First of all, we are going to write here the date and day, and today the date is as usual, you all know the date is August 28th 2020. Here is the date and we are going to write here the classwork and Friday. After this we are going to write here the topic, and our today's topic is letter to father asking for money. Letter to father asking for money. So before starting मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो लेटर का पैटर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. All of you have to very concentrate on the pattern of the letter. So we have start the pattern from examination hall, city ABC and our date. Examination hall, city ABC, A.B.C. and date August 28th, 2020, full stop. After it, skip a line and we are going to write here, my dear father. F is capital in this syntax, comma. We are going to start the word just below the comma. Comma के नीचे से हम start करेंगे. You will be pleased, P-L-E-A-S-E-D, pleased to know that I have passed the examination of fourth class now I am in class 5. एक लाइन स्किप करके, I have to buy books and notebooks for new class. I need rupees 500 please send me this money as soon as possible. Thank you. Your loving. If you are a girl, you are going to write here the daughter, and if you are a boy, you are going to write here the son. Son दोनों लिख देती हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. DAUGHTER डॉटर.
comma x dot y dot z dot. दिस इज़ द लेटर. अगेन एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ. एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC August 28, 2020. My dear father, you will be pleased to know that I have passed the examination of 4th class. Now I am in class 5. I have to buy books and notebooks for the new class. I need rupees 500. Please send me this money as soon as possible. Thank you, your loving son or daughter XYZ. इन दोनों में से आपने जो आप हैं आपने वो लिखना है. अगर आप लड़का हैं तो सन लिखेंगे, लड़की हैं तो डॉटर लिखेंगे. दिस इज़ इट. 5th class we have complete the letter and alhamdulillah almost we have complete all the aspects of our English grammar syllabus. Okay, now it's time to do some of the interesting things like definitions. First of all, we are talking about articles. आर्टिकल्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं. दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं. एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. उनको भी आगे से प्रोवाइड की हुई हैं फॉर्म्स. लाइक जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो एक है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं आ और एन. मैं इसके बारे में आपको आगे से आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ड्रॉ करते हैं. One is indefinite articles or another is definite article. Okay, after it we are going to write कि इनकी आगे से क्या फॉर्म्स हैं. तो indefinite बेसिकली indefinite के 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, लाइक दिस. अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हैं, एक होता है आ, एक होता है एन, और डेफिनेट दी. ओके 5th क्लास, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी. इसके बाद अब बारी आती है कि आ किन के साथ यूज़ होता है, एन किन के साथ यूज़ होता है और दा किसके साथ यूज़ होता है. अगर हम दा की बात करें तो दा बेसिकली सारी पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज़ होता है जो स्पेशल थिंग्स होती हैं. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विथ स्पेशल थिंग्स. स्पेशल थिंग्स. ठीक. एन यूज़ होता है हमेशा वॉवल्स के साथ. अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये वॉवल्स होते हैं, इनके साथ एन यूज़ होता है. एंड वन मोर थिंग, जो वॉवल्स की अगर साउंड भी कोई वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना तो उसमें भी हम एन ही लगाएंगे. आ हमेशा एक चीज़ के साथ या इनके अलावा जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के साथ आ यूज़ होता है. वॉवल्स के अलावा बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ.
कंसोनेंट्स के साथ आ यूज़ होता है या और वन थिंग, जहाँ पर एक चीज़ की बात हो रही हो वहाँ पे द आ यूज़ होगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लें। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में सिर्फ एक आता है आर्टिकल, दैट इज़ द जो हमेशा स्पेशल या पर्टिकुलर चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, आ और एन। एन हमेशा वॉवल्स के साथ यूज़ होता है, ए ई आई ओ यू के साथ, और आ हमेशा एक चीज़ या जितने भी कंसोनेंट्स हैं, कंसोनेंट्स कहते हैं इन वॉवल्स के अलावा जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको कंसोनेंट्स कहेंगे, उन सब के साथ आ यूज़ होता है। ये थी हमारी बात आर्टिकल्स की, जो कि मैंने आपको करवा दी। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि मैं आपको एक दफ़ा एक्सरसाइज लाइक करवा देती हूँ। Okay, now it's time to do the fill in the blanks, and we are going to do write the fill in the blanks. Like number 1 is so this is dash dog is a faithful animal. And second number is it is dash eagle. Number 3 is dash sun rises in east. Number 4 he is dash ma. Number 5 I bought dash s and dash camel. Okay, we are going to write the words over here. इनके जो आंसर्स हैं वो लिख लेते हैं। डैश डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। देखिए एक डॉग की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा द डॉग। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इट इज़ डैश ईगल, ई से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ वॉवल, सो इट इज़ एन ईगल। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, सन एक ही है, स्पेशल है, इसीलिए दी सन राइजेज इन द ईस्ट। ही इज़ डैश एम ए। अब देखें जब वर्ड हम पढ़ रहे हैं एम, तो एम वर्ड भी आ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन लिखेंगे। ही इज़ एन एम ए। आई बोट डैश एस, आई आ है इसलिए आई बोट एन एस एंड डैश कैमल, आ कैमल। सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आर्टिकल्स की समझ आ गई होगी, और इसकी जो मैंने आपको बताया है वर्ड्स, जो मैंने आपको यहाँ पे भी ये कंसेप्ट में आप समझाया है, इसको भी अच्छे तरीके से 5 क्लास अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।